नमस्कार, मैं हूँ गजो अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, आज मैं केकर मोनिंग आया हूँ और यहाँ पर भारत की आज़ादी का पर्व है, उसे मनाने का जो यहाँ पर आयोजन हुआ है उसे मैं यहाँ साथ देने आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है केबांग सियांग ज़िले में है और यहाँ के लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। इनके दिलों में भी आज़ादी का जज्बा उतना ही है जितना 1947 से पहले थी और आज भी वो कायम है। तो इन सब के नारों से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। चलिए नारा लगाइए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती के बारे तो आपने सुना ही होगा, पर आपने ये शायद ही सुना होगा कि इन हसीन वादियों में यहाँ के सपूतों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ देश का पहला सूरज उगता है, पर यह शायद ही सुना होगा कि यहाँ के कई घरों के सूरज समय से पहले ही अंधकार में खो गए। आज उन्हीं आज़ादी के दीवानों को श्रद्धांजलि के तौर पर एक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। और उसी समारोह के साक्षी बनने हम पहुँचे हैं सियांग जिले के केकार मोनिंग गाँव। Yang karo de dadam, yang to manaling yang karo de dadam, yang karo de dadam, yang karo de dadam, yang karo de dadam, yang karo de dadam,
Gayang Gayang karo de dadam 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 Gayang 1947 Taglo Oh 15 tarik Yumalo Yo baro bajilo Baro sadin pabonang ko Yaya bonong mena dia sadin pabonang ko Yaya gandi ke sadin pabonang ko 1947 Mitaglo Agosto 15 tarik Yumalo Yo baro bajilo Baro sadin pabonang ko कहते हैं जब अंग्रेजों ने अरुणाचल प्रदेश की सरजमी पर अपने कदम बढ़ाए तो यहाँ के लोगों ने बहुत रेसिस्ट किया। कहते हैं नेल विलियमसन के वध के बाद नदी के उस पार के पहाड़ से अंग्रेजों ने हमला किया था और हमारे आदि लड़ाकू इन पहाड़ों में छुपे हुए थे। इसी क्षेत्र को केकर मोनिंग कहा जाता है। आइए इसी क्षेत्र के एक स्थानीय निवासी से इस कथा को सुनते हैं। I'm here to tell you about a little bit about the importance of this place and importance of Kekar Monying. Actually, the history goes like this. The Kekar Monying is famous only for its war between Britishers and the Adis under the leadership of Kebang, and all the Adis jointly fought this war during 4th December to 1911. And here the special significance is that the stone clusters has been rolled down to the British Army during this war.
but the Britishers were well equipped and advanced in technology. And the first Lee Enfield rifle arms has been used against those fighters during that days, and they couldn't penetrate this gate called Kekar Yapgo in our local dialect. Then the Britishers crossed this river called Siang and Brahmaputra in Assam, and they crossfire from that Romkang Putung. Nowadays it is called Sishen village, and that was the last fortress. This is the last fortress of the Adis. Earlier it was Sile Yapgo, Torne Yapgo, Egar Yapgo, all these things. Lastly, Britishers came here, and we the people, our forefathers, tried to protect our land, but couldn't face the mighty Britishers, so ultimately fell into the hands of the British Empire. Indian freedom fighter, Indian freedom legapa, ngoluk British mimak pamin hina kidaram, important pemu pahilang kula, program mengkung ko ediuram laidam, Arunachal government elang, tema kandu ke government elang, Modi sab ke government elulugla, Kekar moni hi ngoluk notice hok batiane jega kon paidung. Dalok manmur jamo karaga hem ko moboje ko try to. Ina nino society हम को लुला ngo manmur jamo trust को बनाइए और दिल्ली बगे organization को ने ngo में लुला ngo connection का नाम organization को ने लुला 1857 then India holo ka first war of independence pe ludum और ngol Arunachal solo ka freedom struggle adam pre-datum resistance against British am ngolo resistance nama ngolo 1839 no ke start no delok ke ilangal till manungolo 1912 1947 delpa ngolo Arunachal amiye freedom struggle or resistance against the imperial power he longa he 1930 delo Mahatma Gandhi we British allow salt taxation law में break नाम लगा पे मार्च को इतो गुजरात वाला इलाही लोग के लोंगा ही मिडूं एकार मॉर्निंग को स्पेसिफिक रीजन अन्यों को बैकग्राउंड जस्ट एक मिनट लगा पे लुए एकार मॉर्निंग एक्सपेडिशन द 1911 द लोग मार्च 31 लोग मर्डर ऑफ नोएल विलियम्स के लोग आउटकम है इको जो दुनिया लुका दांडी मार्च civil disobedient movement 1930 occur munga father of the nation Mahatma Gandhi भी salt log against be Dandi march को Sabarmati आश्रम ब्लॉक 375 किलोमीटर को cover ला 25 days को अलग ला Dandi village be sea coast be कादू गुजरात be बोलो इंगुल ला बोलो इतो तो इसी रास्ते से चलकर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये दौड़ रहे होंगे, उस वक्त छुप रहे होंगे, यहाँ से तीर चला रहे होंगे, यहाँ से अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहे होंगे। तो उसी लड़ाई को याद करते हुए आज उन्हीं अपने पूर्वजों की याद में, उनके बलिदान की याद में आज ये नारा लगाया जा रहा है। जय मनमोहन जमो की जय लुलुम तमुक की जय लुलुम तमुक की जय जुमलो दारम की जय भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय भारत माता। तो इस जंगल में भी भारत माता की जय का नारा लगाया जा रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश की देशभक्ति का बहुत बड़ा सबूत है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। इसी दौरान मुझे नेल विलियमसन के वध करने वाले वीर मातमुर जामो के ग्रेट ग्रैंडसन से मुलाकात करने का अवसर मिला। मातमुर जामो को नेल विलियमसन के वध की सज़ा में काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी और वे कभी लौट कर ही नहीं आ सके थे। तो इस वक्त मैं मातमुर जामो के फिफ्थ जनरेशन आपका नाम? मानमुर जामो। मानमुर मातमुर के फिफ्थ जनरेशन के उनके ग्रेट ग्रैंडसन मानमुर जामो के साथ हूँ, और ये वो स्वॉर्ड है जिससे नेल विलियमसन का वध हुआ था। तो आई एम वेरी लक्की टू होल्ड दिस। इसी से नेल विलियमसन का वध हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश में शायद
पूरे भारत में ही मैं ही वो दूसरा शख्स होऊंगा जिन्होंने इस स्वॉर्ड को हाथ लगाया है। तो थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा बताइए, अभी आपके परिवार में अभी कौन कौन है? अभी मेरा परिवार में हम 3 तो लड़का है। ओके। और मेरा मिसेस है। हाँ। और माँ है। हाँ। बाबा नहीं है। ओके, अच्छा। हाँ। तो अभी आप फिलहाल क्या यहाँ पे खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा। बिजनेस और धंधा नहीं करते हैं। अब बिजनेस धंधा वगैरह नहीं करते? नहीं करते हैं, हाँ। खेती फार्मा। सरकार जो अभी तो हम लोग को तो फैसिलिटी फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ हाँ। इसको अभी ये करना ही पड़ेगा। अच्छा। हम लोग, मेरा बाबा तो अरुणाचल के लिए अपना देश के लिए लड़ा था। देश के लिए, भारत के लिए लड़े थे। भारत के लिए लड़ा था जी। इसलिए अभी तो फैसिलिटी नहीं मिला है गवर्नमेंट। अभी तो गवर्नमेंट इसको देखना ही पड़ेगा। ओके। फैसिलिटी कैसे और फ्रीडम फाइटर। हाँ हाँ। उसको देखना ही पड़ेगा तो ना। अच्छा। हाँ। अभी तो कुछ नहीं किया है। आप भी उस परिवार से हैं? हाँ, आइए आइए आइए। अरे रुगला मैंने पहले इनको देखा था आपके बात करते हुए। जी हाँ हाँ, दोनों ही। आप कौन से जनरेशन के? इधर आ जाइए। ये 5th जनरेशन के हैं आप कौन से जनरेशन के हैं? हम ये जो है 4th जनरेशन। 4th जनरेशन, मतलब आप इनके चाचा लगते हैं? नहीं। तो मतलब आप भाई हैं? नहीं। तो क्या है आप? नहीं, ये जो है ये मानमुर का है। मैं लुनुंग तामुक का। ओ, लुनुंग तामुक के। अच्छा, मानमुर का। ओके, लुनुंग तामुक भी एक फ्रीडम फाइटर थे। मतलब उन्हें भी काला पानी की सजा हुई थी? नहीं, उनको तो काला पानी का सजा नहीं हुआ था। अच्छा। वापस आए? वो वापस आए थे। ओके। आफ्टर 10 years? नहीं, वो तो हम बोलने नहीं सकेगा। इसको तो आफ्टर many after decades, after decades or 2, वो उसको वो जेल में कितना बीता है वो तो मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन जब वो ब्रिटिश जेल से सजा काट के आया था जी, तो इतना तो हम लोग को पता है जी कि सूल इतना तक आए थे। ओके, लंबा हो गया था, लंबा होके आए थे। ओके। और उस समय भी तो नहाया तो नहीं था। हाँ। और इसी से पता चलता है कि उनको कितना साल वहाँ में बेटा कैद रखा उन्होंने। कोई किसी भी तरह की फैसिलिटी भी नहीं दी होगी। हाँ, बाल तक नहीं कटवाया? नहीं, बाल तक नहीं कटवाया जी। तो आज आप कहाँ? पासीघाट में? पासीघाट में हूँ। ओके, तो आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरुणाचल प्रदेश के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके आप ग्रेट ग्रैंडसन हैं। आप दोनों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। ओके, वही। हाँ, आप दोनों ही ग्रेट ग्रैंडसन हैं, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को। हाँ, तो ये मेरा तो मनमुर जमो तो कलापानी में फेंक दिया ना, खा जेल में मरा दिया ना, फांसी लगा दिया ना। ओके, घूर के नहीं आया है। हाँ, घूर के नहीं आया। घूर के मेरा मनमुर जमो का क्या हुआ इतना हमें कुछ अभी किसी को भी पता नहीं है। सेलुलर जेल में जो अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सजा होती थी, वहाँ जो लोग जाते थे उनका दरअसल कुछ पता भी नहीं चलता था। तो मैं यहाँ केकर मोजिंग में आज़ादी के अमृत पर्व समारोह पर आया हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मैंने मातमुर जामो के ग्रेट ग्रैंडसन से मुलाकात की और उस तलवार को मैंने छुआ जिस तलवार से नेल विलियमसन का वध हुआ था। तो ऐतिहासिक तौर पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया किस किस तरह से यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो अरुणाचल प्रदेश भी कभी भी आज़ादी की लड़ाई में पीछे नहीं था। यहाँ के लोग भी आज़ादी चाहते थे। भारत के साथ हमेशा से ये रहा है। ये जो समारोह है इस बात को ये सिद्ध करता है। आशा करते हैं आपको भी ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और दुआ कीजिएगा कि ये आज़ादी हमेशा के लिए आपके हमारे दिल में रहे, उनका बलिदान आपके हमारे दिल में रहे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। किसी और ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।